Hello everyone, Namaskar, welcome to Psychodrama, and we are today taking up a very nice live session of how to crack UGC NET for 2023. So we are coming up all the exams for this year. So let me introduce myself first. मैं हूँ सुकन्या and this is Psychodrama, a channel for all the psychology students where you can know a lot of things, how to prepare for your exams and how to be in track for psychology. So today we are going to do a live session with an amazing guest speaker named Amola Bansal. So let's have her join in our session and then we can start the session. So I'm waiting all of you guys to join up. So I think you guys have those who are preparing for UGC NET. आप सभी ने अपना preparation start कर दिया होगा and you must be very excited for this live session. So आपके जितने भी questions होंगे, whatever you want to ask, you can ask to our guest speaker very fluently. She's a very fantastic, amazing person. I know her personally as well. So आपके जो भी doubts हैं, do clear it up. We are going to take up that in the last of the session. And meanwhile, you can tell up how to go with the things in our live session. You can also invite your friends meanwhile to join the session and let me know if she's here. So जब तक हमारी speaker join करती है, yes, she is here. Hi Amola. Hi, Sukanya. Welcome to. How are you? I'm good. How are you? Welcome to Psychodrama. I am fantastic and I'm so excited for our live session. Yeah. अभी मैं लोगों को आपके बारे में बताने वाली हूँ what you have achieved and what are we going to expect from this session. So let me guys introduce this amazing person. Her name is Amola Bansal and she has done MSc Clinical Psychology from Christ University, which is one of the best universities of our country. She has done the certificate course in Trauma Informed Care from TIS, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. And she has qualified GATE 2023 and UGC NET December 2022. So, and she is currently a practicing psychologist. उन्होंने अपना एक पेज भी बनाया है, Gohil by Amola. So you can definitely find her amazing content and you can contact to her for any workshops and any webinars she's doing. So let's take up, we are taking up the topic, how to crack UGC NET by Amola Bansal. Yes, Amola, please tell how is the weather up there? First you tell me that. How is? How is the weather at your place? It's super great today. Oh, so in India, all over, a lot of places is facing such issues, right? Yeah. It's rainy, Yeah. so it's beautiful. yes. So Amola, please हमें बताइए आप इतना पढ़ चुकी हैं, इतनी सारी चीजें आपकी achievements है. Like how has been this journey for you? Yeah. First of all, I would like to, express my gratitude towards you. हम यूजी में साथ थे और अब इस तरीके से यहाँ पे मिलना it's just different feeling. And I'm very grateful for it, to be a guest speaker and be present here. And my journey has been. Guys, मैं पहले आपको बता दूं, sorry to interrupt Amola. Amola and I, we used to be in Amity and we have done our bachelor's together in clinical psychology. Yeah. We were very good friends in the college and अब जब हम professionally मिल रहे हैं, this is a whole different feeling. Yeah, so true. And yeah, so yeah. It has
has been with ups and downs. So ये achievements भी जो हुई हैं एकदम first attempts में नहीं हुई हैं. So I think I have been on both sides, failure and success. So yeah. So nice. That's so nice. तो आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है ये सेशन एंड दे वांट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज दे हैव सो मेनी डाउट्स फॉर यूजीसी नेट एंड जब भी हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वी नीड अ मेंटर फॉर इट. So I thought who can be the best mentor other than you right now. So yes, Amola, please tell me how you have, first you have started your journey in a psychology field. So I just, while starting my undergraduation, I didn't even know before that there is a subject like psychology and you can pursue your whole career in it. I used to think psychology क्या ऐसी कुछ होता है. But then I got to know, wow, उसमें degree होती है. You can do graduation, you can do masters. So that is how I was introduced to psychology, and then I just started liking it. And now, as a professional psychologist, it's just amazing. So how is your feeling being a psychologist? Like we are talking after so many years. So how are you like? हम जहाँ बैचलर्स में ये चीज सोच रहे थे, this was our dream to do that. Definitely. So how are you feeling right now with the field? Right now it's a lot of enthusiasm, a lot of gratefulness. Yeah. Okay. That's so nice. So nice. How are you feeling? I am so excited for this session because myself, I am also very, very competitive these days. I'm preparing for exams and I'm teaching people as well. So, काफी सारी चीजें मैं खुद भी learn कर रही हूँ. I'm also imparting it. So this has been like, this is also like a quite journey for me. But आज जैसे मुझे UGC नेट के बारे में मुझे और मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैंने एक पोल भी रखा था. नाउ पीपल हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट यूजीसी नेट, ऑल्दो इट इज अ नेशनल लेवल टेस्ट, बट एक मेंटर से ये सारी चीजें जानना इज अ होल डिफरेंट थिंग. सो प्लीज अमोला, पहले आप हम सबको ये बताइए कि व्हाट इज यूजीसी नेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजीसी नेट एंड जेआरएफ. बिल्कुल, लेकिन सुकन्या, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कैन आई जस्ट गेट अ लिटिल आइडिया ऑफ आवर ऑडियंस कि मे बी जिसने नेट दिया है और जिसने नहीं दिया है, जिसने दिया है दे कैन जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, एंड जिसने नहीं दिया है अब तक एक बार भी, दे कैन जस्ट टाइप एन. So if you have given UGC net exam, you can type Y, and if not, never, you can type N, so that we can get a rough idea and how to mold how many have given. Yes, please guys comment करिए आपने अगर UGC net दिया है. If you have given UGC net, type Y, and if you are not, then type N. Okay. So yeah, a few people, they are from like, they haven't appeared for this exam, so they are here to know a lot of things from scratch. Right. So right. yeah. And are you planning to give this time? जो जिन्होंने अब तक नहीं दिया है, are you planning to give this time the exam which is next month? You can type yes or no again. How many of you are you planning to give next month? जून में जो पेपर होने वाला है. Okay. Yes. Yeah. Okay. Yes. जून में काफी बच्चे अपीयर करने वाले हैं. So yeah. So बोला अगर हम फोकस करते हैं यूजीसी नेट जून के लिए, so I guess यूजीसी नेट का पेपर साल में 2 बार ही होता है, जून एंड दिसंबर. Right. So अगर हमें जून में हम फोकस करते हैं, what should be our temperament, what should be our strategy, and can you please introduce UGC net to us? Yeah, definitely. So UGC नेट जिन्होंने अब तक नहीं दिया है उनके लिए मैं स्ट्रेच से बता देती हूँ कि क्या होता है बेसिकली. तो ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है और इसको कंडक्ट यूजीसी करता है. नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये हमारी किस चीज की एलिजिबिलिटी चेक करता है?
लेक्चरशिप के लिए हमें कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे अप्लाई करना होता है, उसके लिए दिस एग्जाम इज काइंड ऑफ अ गेटवे which makes us eligible for lectureship and for JRF, Junior Research Fellowship. We will talk about what JRF is, but ये एग्जाम बेसिकली हमको एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि हम लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग नेट, एंड JRF करके वी आर एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप. दिस इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. और जैसा कि सुकन्या ने बताया, साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर. कोविड की वजह से इसकी साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, बट अब हम रेगुलर हो रहे हैं इस बार से. ओके ओके, दैट्स वंडरफुल. सो आप ये कह रहे हैं ये जो एग्जाम है वो हम अगर कोई भी अगर साइकोलॉजी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू बी प्रोफेसर्स इन द school, like in the field of psychology, they should appear for UGC NET and JRF. Or if they want to pursue PhD. Okay. So what are these, like, kya UGC NET is the, like, they are different exams, UGC NET and JRF, or they're just same exam and for different, like, how is that segregated? Please let us know. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मुझे भी रहता था आज से 2 साल पहले, क्या होता है UGC NET JRF, अलग एग्जाम्स होते हैं, सेम होते हैं, बट दे आर सेम एग्जाम्स. और UGC NET जो क्वालिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने जितने भी अप्लाई किया था उसमें से 100 लोगों ने UGC NET क्वालिफाई किया. उस 100 में से जो टॉप 6% होते हैं वो JRF के लिए एलिजिबल होते हैं. सो 100 में से केवल टॉप 6 बच्चे they are eligible for JRF. They are not different papers, they are same paper, but कट ऑफ अलग होती है. नेट के लिए कट ऑफ लो रहती है, JRF के लिए थोड़ी हाई रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ईयर का पैटर्न देखें तो इस ईयर नेट के लिए कट ऑफ 210 थी, वेयर एज JRF के लिए 236 थी. तो सेम पेपर बट डिफरेंट कट ऑफ. नेट का जो बिल्कुल क्रीमी लेयर होती है, टॉप 6% वाली, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होती है. और इसका मतलब होता है कि यू कैन गेट सम स्टाइपेंड व्हिच इज अराउंड 30,000 each month when you pursue your PhD. So this is for JRF, not for UGC NET. UGC NET is basically a qualifying kind of thing which makes you eligible to apply for lectureship, but JRF is a fellowship. That is the stipend that you get while doing your PhD. And there is one more difference, that for JRF there is a age limit of 30 years for general category. There is a difference for different categories, but for general category the age limit is 30 years. However, there is no age limit to appear for NET exam. So you can give this. That's wonderful. Yeah. Okay, so what is the validity of this, if we qualify UGC NET, so what is the validity up till when we can use this certificate or whatever we are qualifying this exam? तो हम कब तक apply कर सकते हैं with this UGC NET, या हमें हर साल इस पेपर को देना जरूरी है? Like, what is the validity of this exam, qualifying the exam? हर साल ये एग्जाम नहीं देना पड़ता है. एक बार हमें क्वालिफाई करके हमको ये लाइफ टाइम के लिए एक हमारे ऊपर टैग लग जाता है कि दिस पर्सन इज UGC NET क्वालिफाइड. सो आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आप कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी अप्लाई कर सकते हो फॉर लेक्चरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट. So this happens with JRF as well. Do we have any validity for JRF, or it is also for lifetime? I think JRF is not for lifetime. I'm not sure for this. I think it has a validity of 3 to 5 years. Somewhere around. Maybe we can check and let the people know by the end. Okay. Also, I got a question, like, is there any difference for women? Like, if the women is of like same age or of different, is there any difference in the qualification or the validity? No, there is no difference for women. There is no difference for gender, any gender. Okay. So ये जो exam है, चाहे वो male हो, female हो, they have to qualify once, then they will be able to join anywhere in the country as a lecturer. Okay. But JRF is not for lifetime. JRF has a limit of validity, but I'm not sure वो कितनी होती है.
So we will check that. So I think JRF, what I have researched, JRF is for 3 years. हाँ, आपसे 3 years तक आपकी validity होती है, and UGC NET has a very quite lifetime validity. So that's a very good thing if somebody is going to in the field of psychology, want to be a lecturer. So once have to clear the UGC NET, then you are good to go. Right. Okay. And same is for GATE exam. It has validity of 3 years. GATE also has 3 years validity? Yeah. Okay. After So that you have fine. to give the exam again. So similar will be for JRF. अगर आपकी 3 साल की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आपको दोबारा JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर दोबारा आप तब PhD कर पाएंगे. तो अगर दोबारा हम JRF के लिए करते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू लाइक होल दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड. हमें वापस से ये UGC NET JRF का पेपर देना पड़ेगा इफ वी आर फोकसिंग ओनली फॉर JRF. राइट. ओके. So another question is जो आपने बताया जो कट ऑफ स्कोर्स होता है, so are this very very consistent through all of these years या every year का the cut off is different और the percentage system होता है, कैसे होता है इसमें? कट ऑफ आती है, मार्क्स बेस्ड होता है, बट इस टाइम देखने के लिए मिला है कि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली एकदम इंक्रीज हुई है. सो लास्ट टाइम तक कट ऑफ हमारी फॉर नेट 170-180 अराउंड रहती थी, बट 200 से ऊपर होता था कि यू विल क्वालिफाई JRF. बट इस बार नेट की कट ऑफ 210 गई है एंड JRF की कट ऑफ 236 गई है. सो दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी. सो अभी तक कट ऑफ काफी कम रहती थी एंड द रीजंस दैट आई एम होपिंग फॉर दिस आर आजकल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है सुकन्या. पहले कुछ टॉपिक्स होते थे जो बहुत सारे लोगों को नहीं आते थे. फॉर एग्जाम्पल टी टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन, इसमें बहुत लोगों को बहुत डाउट्स होते थे. बट आजकल रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है. जो थोड़ी सी मेहनत करेगा दे कैन अंडरस्टैंड क्वाइट इजीली, दे कैन अंडरस्टैंड. सो हर कोई वो वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पा रहा है. पेपर का लेवल चेंज नहीं हुआ है बट हर कोई वो क्वेश्चंस कर पा रहा है. सो दैट इज द रीजन कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है. तो मतलब अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेते हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट हमारी जो भी आज के पेपर हुए वी हैव टू लाइक हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रादर दैन पिछले वाले पेपर्स के कंपैरिजन में. We should at least aim for around 250, क्योंकि हम 250 का एम रखेंगे तब हम कहीं 230 अराउंड 200 to 230 तक पहुंच पाएंगे. और JRF क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट वी नीड दैट 250 का एम वी नीड अगर हमें JRF क्वालिफाई करना. वेरी हाई स्कोर दैट वी हैव टू एम. अगर किसी को UGC JRF क्लियर मतलब अगर क्वालिफाई भी करना है तब भी दे हैव टू बी वेरी वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे एटलीस्ट 250 स्कोर करना है तब जाके कहीं हम 220-230 के रेंज में आएंगे. बिकॉज टोटल मार्क्स 300 है. सो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. तो आप थोड़ा सा जैसे हम अगर एग्जाम पैटर्न की तरफ चले, सो कट ऑफ को देखते हुए इफ वी से व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सो कैन यू प्लीज ब्रीफ इट आउट कि अगर साइकोलॉजी से नहीं है तो उनका क्या पैटर्न रहेगा, कोई साइकोलॉजी से है तो क्या पैटर्न रहेगा. कैन यू प्लीज ब्रीफ इट आउट. सो पैटर्न साइकोलॉजी और नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए सेम ही होता है. बस इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. पेपर 1 में आपके जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं, जनरल यूनिट्स, फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एक्सेट्रा. और जो पेपर 2 होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. सो अगर हम साइकोलॉजी फील्ड से दे रहे हैं तो पेपर 2 पूरा साइकोलॉजी से होगा और पेपर 1 सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो साइकोलॉजी से हो, मैथ्स से हो, साइंस से हो, डजंट मैटर. तो पेपर 1 इज सेम फॉर ऑल बिकॉज वो हमारी टीचिंग एबिलिटीज, रिसर्च एबिलिटीज ये सब कुछ असेस कर रहा है. सो दैट इज सेम. बट पेपर 2 इज डिफरेंट. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं. तो टोटल 150 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं. एंड इफ एनीवन वांट्स टू मेक अ नोट ऑफ दिस, यू कैन नोट इट डाउन कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100.
each 100 questions होते हैं, yes. each question is for 2 marks. तो basically 150 क्वेश्चन से हमारे पास 300 मार्क्स हो जाते हैं. सो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, +2 फॉर ईच करेक्ट आंसर होता है. और अगर आप ये जो पेपर होते हैं, क्या ये डिफरेंट पेपर लाइक स्लॉट वाइज डिवाइडेड है, या एक ही साथ हम पेपर दे सकते हैं? कैन वी स्विच बिटवीन द पेपर्स? लाइक हाउ डू वी डू दैट? लाइक व्हाट इज द मोड ऑफ द पेपर? पहले तो आप ये बताइए, जो ये क्या ये पेन पेपर टेस्ट है, कैसा टेस्ट है ये? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और सेक्शंस अलग अलग होते हैं. जैसे अगर किसी ने पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है तो उसमें हमारी स्क्रीन के साइड में क्वेश्चंस लिखे आते रहते हैं. तो अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, सेम ही पेपर के पार्ट्स होते हैं. एंड यू कैन स्विच बिटवीन देम. मतलब आपको मन कर रहा है कि अभी मैं पेपर 1 के 25 क्वेश्चंस करूं, तो आप वो करके और फिर पेपर 2 पे जंप कर सकते हैं. तो आप कभी भी जंप कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस यही है कि एक पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे पे शिफ्ट करना बेटर होता है. क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स के लिए कब होता है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग फैक्टर. तो कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि इफ यू आर डूइंग इन पेपर 2, सो लेट्स स्टार्ट थोड़ा बहुत पेपर 1 से, बिकॉज वो एंग्जाइटी लेवल भी शूट अप होता रहता है कि यस, होल पेपर 1 अभी भी बाकी है. सो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं वहां से कर लूं, देन मैं यहाँ से करूं, तो वो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का भी फैक्टर होता ही है. और वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक भी होता है, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा किसी का नहीं मानना चाहिए. जैसे मेरा है कि मैं हमेशा पेपर 2 पहले करती हूँ. तो कुछ लोगों का होता है कि उन्हें पेपर 1 ही पहले करना होता है, क्योंकि दे हैव अ सेटिस्फेक्शन कि अब हो गया. और हम अपनी ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने पहले एग्जाम दिया है तो पेपर 1 करते हैं पहले या पेपर 2 करते हैं. सो तो एवरीबडी, देयर इज दिस क्वेश्चन. आप अगर यूजीसी नेट का पेपर या फिर कोई भी पेपर जिसमें आपके 2 सेट्स हो, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? डू यू वांट टू लाइक पेपर बाय पेपर सॉल्व करते हैं, या यू सॉल्व इट एक ही साथ, लाइक कुछ पेपर 1 से कुछ पेपर 2 से? तो किसी ने अगर यूजीसी नेट दिया है, प्लीज शेयर. आप कैसे आंसर करते हैं? व्हाट इज योर सीक्वेंस? क्या आप प्लान कर रहे हैं मे बी अभी एग्जाम देने का? तो अभी आप क्या प्लान करते हो कि पेपर 1 पहले दोगे, पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करोगे, पेपर? ओके दिस आंसर पेपर 1. ओके, या पेपर 1 में काफी सारी चीजें सॉल्व करने के लिए होती है. सो ओके थैंक यू स्वदर्शनी. ओके अगेन दीप्ति, पेपर 1 या पेपर 1 लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. दैट इज नाइस. ओके गुड. आई थिंक ये स्ट्रेटेजी होती होगी कि कहीं ना कहीं अगर हम जनरल चीजें कर लेते हैं, देन वी actually focus on paper 2. Yes, we have paper 2 as well. Okay, that's great. Nice. No. Okay, हाँ, इसमें marking. There is no negative marking only. So one of my advice is that you should attempt all questions. उसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में, जिसने एग्जाम पहले नहीं दिया है. जब हम कोई क्वेश्चन मार्क कर देते हैं तो वो उसका बॉक्स ग्रीन कलर का हो जाता है. अगर हम कोई क्वेश्चन देख के स्किप कर रहे हैं बिना कोई मार्क करे, तो वो रेड हो जाता है उसका बॉक्स. और अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसको रिव्यू के लिए छोड़ रहे हैं कि हमें बाद में देखना है, थोड़ी कंफ्यूजन है, तो पर्पल होता है. अब रिव्यू में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं सुकन्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, कि हम बिना आंसर दिए रिव्यू के लिए लगा सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, बाद में देखना है. सो हमने रिव्यू के लिए लगा दिया विदाउट अटेम्प्टिंग. और एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आंसर मार्क कर दें, उसके बाद हम रिव्यू पे लगाएं कि हमें इसे बाद में आके देखना है. सो आई प्रेफर कि आप आंसर लगा के फिर रिव्यू पे डालो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा और पेपर ऐसे ही सबमिट हो गया, तो हमने अगर आंसर लगा के रिव्यू के लिए डाला है तो वही आंसर चला जाता है. और अगर हमने ब्लैंक रिव्यू के लिए डाला है तो हमारा कोई आंसर नहीं जा रहा है. तो मान लीजिए वो डाउटफुल भी है, तो एटलीस्ट यू आर गिविंग सम आंसर. हो सकता है वो सही हो जाए, हो सकता है, मतलब अगर आपको सोचने का टाइम नहीं है, अगर आपको टाइम परमिट उतना नहीं करता, एटलीस्ट यू विल हैव सम आंसर्स that you have marked. आपका blank नहीं जाएगा वो questions. That is the whole strategy behind this. 25% probability है कि वो सही हो सकता है. So why not?
That is true. In fact, what I have analyzed giving all these papers, हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रैक्टर्स दो होते हैं. दो तो हम पहले ही निकाल देते हैं क्वेश्चन से कि ओके ये दो तो हो ही नहीं सकते. जो बाकी दो होते हैं उनमें कंफ्यूजन आता है एंड वी फ्लक्चुएट कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. राइट. सो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन. दिस इज द बेसिक मंत्रा ऑफ यूजीसी नेट कि हमें कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं. गेट में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसके लिए हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, बट यहाँ पे जब नहीं है तो हमको मस्त जय माता दी करके चाहे आंसर देना पड़े, बट देना चाहिए. Amola, you have a very nice compliment. Ma'am, you are giving so much clarity for us. Thank you so much. So glad, Sudarshini. Thank you. हमारा तो गोल ही वही है कि आप सबके लिए ये चीज क्लैरिटी हो, क्योंकि काफी बच्चों का ये डाउट रहता ही है. सो वी आर टेकिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने मैम एक लाइक यूजीसी नेट के अंदर ना दो एग्जाम्स होते हैं. व्हाट आई हैव लाइक सम पीपल हैव क्वेश्चनड एज वेल. एक होता है CSIR नेट, वो भी यूजीसी कंडक्ट कराता है, एंड दिस नेट एग्जाम. सो ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? व्हाट इज CSIR नेट एंड व्हाट इज ओनली यूजीसी नेट? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ये मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होता था एक टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता था क्या वो भी क्वालिफाई करना होगा या क्या सीन होता है. बट बेसिकली काव्या मार्क्स डिपेंड करते हैं कट ऑफ पे. इस बार कट ऑफ, हर बार कट ऑफ अलग अलग जाती है, तो पास और फेल जैसा नहीं होता, बट एक कट ऑफ होती है. उस कट ऑफ को अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो यू हैव क्वालिफाइड, और आप क्रॉस नहीं करते हो तो आप अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड होते हो. तो वो कट ऑफ की हमने बात की थी कि लास्ट टाइम 210 गई थी नेट के लिए और 236 गई थी JRF के लिए. एंड इट इज वेरिएबल, मतलब वो शिफ्ट करती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है. सो कमिंग टू CSIR net, question as well. क्या time allot होता है? What is the time allotted to complete the whole paper? Yes. So if we have 150 questions, समोला कितना time हमें मिलता है वहाँ वो solve करने के लिए? हमें 3 hours मिलते हैं एंड 180 minutes. इट इज क्वाइट सफिशिएंट टाइम कि हम एक बार रिवाइज भी कर पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में हमको कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है. पेपर 1 में थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती हैं, बट पेपर 2 में कोई कैलकुलेशन नहीं होती. तो गुड इनफ टाइम होता है पूरा पेपर करने के लिए. 150 क्वेश्चंस 1 में. सो अंश, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा अपना. Okay, so now coming back to our question, CSIR net and UGC net में what is the difference? अगर आप हमें बता पाए. इन दोनों एग्जाम्स का पर्पस सेम होता है कि दोनों लेक्चरशिप के लिए हमें असेस करती हैं. बट CSIR नेट कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए होता है. UGC नेट आई थिंक अराउंड 84 और 85 सब्जेक्ट्स के लिए होता है. सब्जेक्ट्स UGC नेट में, यस करेक्ट. जिसमें एंड लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, साइंसेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है. बट CSIR नेट में केवल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे उसको 5 सब्जेक्ट्स लाइफ साइंसेस, अर्थ साइंसेस, मैथमेटिक्स, सो ऑल बेस्ड ऑन साइंस. दोनों की कंडक्टिंग बॉडीज अलग अलग हैं. अगर हम मेजर डिफरेंसेस देखें तो फर्स्ट तो सब्जेक्ट का ही है, और इस डिफरेंस से साइकोलॉजी वाली पूरी पॉपुलेशन रूल आउट हो जाती है CSIR नेट का एग्जाम देने के लिए. उसके बाद दूसरा मेजर डिफरेंस है उनकी कंडक्टिंग बॉडीज अलग अलग होती हैं. UGC नेट UGC कंडक्ट करता है, UGC का NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. CSIR कंडक्ट करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR. उसके बाद दोनों का एग्जाम पैटर्न भी अलग होता है. हमारा UGC नेट कंप्यूटर बेस्ड होता है और CSIR नेट पेपर पेन बेस्ड होता है. उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है CSIR नेट में, जबकि UGC नेट में नहीं होती. क्या हम प्रोफेसर बनने के लिए CSIR डू वी गिव CSIR एग्जाम, या सिर्फ UGC नेट इज इनफ? नहीं, psychology से if you belong from psychology subject, you do not have to give CSIR net. UGC net is the only exam which makes you eligible for lectureship.
आपको CSIR नेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो जब हमारे पास नोटिफिकेशन आती है तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या ये फॉर्म भी भरना है, ये एग्जाम भी देना है क्या, बट नहीं, हमें वो एग्जाम नहीं देना है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन UGC नेट। ओके ओके, दैट्स अ वेरी नाइस इनसाइट। हाँ, क्योंकि मैं भी खुद पहले कंफ्यूजन में, मतलब हम जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो वी गेट CSIR नेट के भी नोटिफिकेशन एंड वी वो वेटिंग फॉर UGC नेट एंड एवरीथिंग गेट्स वेरी पजल्ड अब कि कौन सा भरना है एंड व्हाट इज फॉर व्हाट। सो दैट्स अ वेरी नाइस। साल में 2 बार होते हैं तो दोनों की नोटिफिकेशन अराउंड सेम टाइम आती है। Yeah, this is very confusing. Right. So I think आप सबको आज क्लियर हो गया होगा what is the difference between CSIR net और कौन से बच्चे CSIR net देते हैं and how it has been done. Okay. तो अब अगर हम UGC नेट में आते हैं अमोला, तो हमारा क्या सिलेबस रहता है? सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का अलग होता है। दोनों में 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 1 की यूनिट्स काफी इस टाइप की होती हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर नॉलेज। तो अगर किसी को भी इसकी डिटेल्ड PDF चाहिए सिलेबस की, तो यू कैन मेल मी at kohil.official@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, कोहिल बाय अमोला, क्योंकि 10 यूनिट्स होती हैं। मुझे सारी याद नहीं है अभी, बट मैं आपको डिटेल PDF भेज दूंगी पूरे सिलेबस की। तो पेपर 1 में भी 10 होती हैं और पेपर 2 में भी 10 होती हैं। पेपर 2 साइकोलॉजी में आपका रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, साइकोमेट्रिक्स एक होता है। उसके बाद बायोसाइकोलॉजी होती है। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है। पर्सनालिटी आ जाता है। देन पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज, एरिक्सन, फ्रॉइड, एवरीथिंग। उसके बाद जो बेसिक साइकोलॉजी होती है उसकी सारे सिलेबस UGC नेट पेपर 2 में कवर अप होता ही है। राइट। ओके। उसके बाद क्वेश्चंस हम अगर वो हमारे सिलेबस से होते हैं, कुछ तो हमारे सिलेबस है। हाउ मच टाइम एंड इम्पोर्टेंस यू गिव फॉर पेपर 1? एनी क्रेडिबल सोर्सेस मैम? मैंने पेपर 1 के लिए स्वदर्शिनी आई थिंक लास्ट के 2-3 मंथ्स में टाइम दिया था कंसिस्टेंटली। और पेपर 1 के रिसोर्सेज मैंने यूट्यूब से पढ़े थे। यूट्यूब पे काफी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी के। मैंने एक तलवीर सिंह करके सर हैं, उनको फॉलो किया था और मोस्टली मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। बहुत ज्यादा पेपर 1 की थ्योरी पे फोकस नहीं किया था। मैंने उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे लास्ट ईयर के पेपर्स के, और जो भी वो यूट्यूब पे डालते थे वो क्वेश्चंस लगाए थे। एंड आई थिंक उन्होंने मुझे काफी हेल्प की थी उन क्वेश्चंस ने। मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाले, वो करने में मुझे ऑलरेडी मजा आता है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो काफी बच्चों का वीक स्पॉट होता है। बट अगर आपको वहां भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप स्टार्ट करोगे, आई ऑल्सो पिन एवरीथिंग। आप जो भी आपके सिलेबस हैं, अगर जैसे अभी अमोला बता रही है कि जो भी आपकी जो प्लेलिस्ट वगैरह है, तो व्हाट आई विल डू, आई पुट अप ऑन अ पोस्ट एंड पिन में कर दूंगी प्रोफाइल पे, आप वहां जा सकते हैं। आपको सारी चीजें, सारे रिसोर्सेस जितने भी आज डिस्कशन हो रही है, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। या प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो ये दोनों में या सॉरी, प्लीज से। या वही बोल रही थी मैं कि दोनों में 10 यूनिट्स होती हैं, और किसी को भी डिटेल्ड सिलेबस की PDF चाहिए तो आई विल सेंड दैम। ओके, या वी कैन गेट दैट फ्रॉम यू। यस, करेक्ट। एक और क्वेश्चन है अमोला, इवन इफ वी हैव क्वालिफाइड फॉर नेट एंड डिड नॉट क्वालिफाई फॉर JRF, कैन यू गिव अगेन टू क्वालिफाई JRF? यस अंश, हमने अभी इसी बारे में बात करी है। सो अगर हमारा JRF क्वालिफाई नहीं होता है और सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है, तो हम दोबारा दे सकते हैं। लाइक सिर्फ हमारे लिए एज ग्रुप एक फैक्टर हो जाता है JRF के लिए। इफ वी आर until unless we are 30 years of age, तब तक हम JRF के लिए we can apply. But yes, we can give multiple times of UGC NET and JRF. Okay, I hope this answers your question. Let me check अगर कोई questions है कि या नहीं। ओके, सो आपने जो ये 3 hours अमोला ने बताया है, ये यस दीप्ति मैम, दिस इज फॉर बोथ द पेपर,
बोथ पेपर 1 and 2 दोनों के लिए, दोनों मिला के 180 मिनट्स अलॉट किए जाते हैं, एंड वी कैन स्विच बिटवीन द क्वेश्चंस, और आप 3 hours में यू हैव टू कंप्लीट द होल एग्जाम. राइट. ओके, सो लेट्स टेक अप. मेनी टाइम्स हम देखते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम केवल साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस के लिए देखें तो 60 to 90 मिनट्स आर इनफ. उसमें हमको ड्रॉ 10 to 12 क्वेश्चन में डाउट रह जाता है कि हमें दोबारा देखना है, बट 60 to 90 मिनट्स में हमारा आराम से हो जाता है. तो वी हैव इनफ टाइम. 180 मिनट्स इज क्वाइट अ गुड टाइम. या मतलब अगर हम पेपर 2 पे सिर्फ पहले फोकस करते हैं, मतलब जैसे मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी ऐसी होती है कि जो फटाफट आपसे हो जाए वो कर लो, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस पे जाओ जहां आप टाइम अच्छे से अपना लगा सकते हो. तो ये स्मार्ट वर्क आप सब कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, यू कैन फोकस ऑन पेपर 2, देन यू कैन स्विच इट टू पेपर 1, ताकि वहां पे अगर कैलकुलेशंस है, इफ यू डू नॉट नो एनी एब्रीविएशन, यू कैन पुट अप योर टाइम एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम देयर. Okay. Because at least, so Amolya, जो पक्का ग्रीन फ्लैग्स हैं उनको हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. जो थोड़े से रेड या पर्पल फ्लैग्स हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, बट ग्रीन वालों को फटाफट कर देना चाहिए. राइट. वैसे भी ग्रीन फ्लैग्स को पहले ही फटाफट सभी कर देते हैं है ना. ग्रीन फ्लैग्स पहले ही खत्म हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चन तो आता हुआ क्वेश्चन है, इनको करो साइड अप. राइट. तो ये तो बहुत ही जरूरी हो जाता है. ओके, सो वैसे क्या बुक्स आप रिकमेंड करेंगे इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट? तो मान लीजिए कि ने बिल्कुल ही तैयारी अभी शुरू करी है, सो व्हाट शुड अ पर्सन, लाइक आपने जैसे बोला वीडियोस के लिए, पेपर 1 के लिए हम वीडियोस देख सकते हैं. अगर कोई बुक्स प्रेफर करते हैं, सो व्हाट कैन बी दोज बुक्स फॉर यूजीसी नेट? पेपर 1 के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी, बट पेपर 2 के लिए मैं बता देती हूँ जो मैंने रेफर की थी. पहले तो मेरी एडवाइस है कि जो भी बुक आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो अपनी यूजी से, उसी बुक को पढ़ना चाहिए. बिकॉज सारी बुक्स में कंटेंट मोर और लेस सेम होता है और क्वेश्चंस भी मोर और लेस सेम ही चीजों से बनते हैं. फॉर एग्जांपल एरिक्सन की थ्योरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों बुक्स में, या पियाजे की थ्योरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो जो बुक आपने यूजी से पढ़ी है, जिसमें हमेशा हाईलाइट किया है, उसी को वापस पढ़ना इज मच बेटर देन एक ही टॉपिक को 5 नई किताबों से पढ़ना. क्योंकि मैंने बताया है, मैंने उससे तैयारी की है. तो ऐसा नहीं है कि जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो सुपर बेस्ट है. वो मैंने हमेशा से यूज की थी, इसलिए मुझे उन्हें पढ़ना बहुत इजी लगता था. तो जो भी आप बुक हमेशा से पढ़ रहे हो, चाहे वो आपके नोट्स हैं, आपके यूजी में टीचर के दिए हुए नोट्स हैं, वो भी मैं अभी यूज करती हूँ किसी टॉपिक के, तो आप वो भी यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अभी आपको सब कुछ नया स्टार्ट करना है या किसी कोचिंग से अभी सामान उठाना है, ऐसा जरूरी नहीं है. तो जो बुक मैंने यूज की थी, मैंने बायो के लिए कार्लसन रेफर की थी. उसकी मुझे लैंग्वेज सुपर इजी लगती है और बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, कलरफुल होती है. यूजुअली बायो की बुक्स ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जिनसे ऑलरेडी डर लग जाता है. कार्लसन काफी अच्छी लगती है मुझे, वो रेफर की थी. जनरल साइकोलॉजी के लिए मैंने सिस्रेली रेफर की थी, और कुछ पार्ट्स के लिए मॉर्गन एंड किंग में भी मुझे बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स, बट मेजरली सिस्रेली की थी. उसके बाद स्टेट्स के लिए मैंने अपने नोट्स यूज किए थे, और कुछ पार्ट्स के लिए AK सिंह. और किसी को कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए पूछना है तो वो पूछ सकते हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट चाहिए जिसके लिए आपको बुक समझ नहीं आ रहा है, या फिर अब अमोला क्या होता है, काफी सारे कॉलेजेस में बैचलर्स में नोट्स टीचर्स डोंट गिव अस नोट्स. तो अब क्या होता है, हमें अल्टीमेटली बुक्स पे रिलाई करना ही होता है. सो इफ समबडी इज लाइक, जैसे जिसको जो लैंग्वेज ठीक लगे, तो अगर आप 2-3 बुक्स, एक बेसिक साइकोलॉजी, जैसे कुछ बुक्स होते हैं जिसमें सारी साइकोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, सो कैन यू प्लीज टेल की 2-3 ऐसे कौन से बुक्स होते हैं जो आ सकते हैं, मतलब वी कैन एक्चुअली कंसिडर दैट. सिस्रेली इज अ रियली नाइस बुक. उसकी लैंग्वेज काफी इजी होती है, सारी चीजें कवर करती है और बहुत इजी लैंग्वेज इजी होती है. मॉर्गन एंड किंग में सुदर्शनी, मैंने परसेप्शन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, और मैंने आई ईयर हमेशा वहीं से पढ़ा था, तो वो पढ़ा था. और उसमें वो है ना,
सारी थेरेपीज, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी, सीबीटी, वो सारे मैंने उधर से पढ़े थे। तो ये बहुत स्पेसिफिक कुछ ही टॉपिक थे जो मैंने मॉर्गन एंड किंग से पढ़े थे, बाकी से स्टडी से। Okay, we have a question from Kavya. Which topic should you more focus on? Like ऐसे कोई टॉपिक है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए? यूजीसी नेट के लिए रिसर्च वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिससे कि वो डरे भी रहते हैं कि नेट का एग्जाम रिसर्च आएगी। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बायोसाइकोलॉजी। और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आई थिंक अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं तो एटलीस्ट मॉडरेट हो जाना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना। बिकॉज ट्रस्ट मी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट है तो दे कैन पर्सनली रीच आउट टू मी, और वो पूछ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का तो फॉर श्योर। सो बायोसाइकोलॉजी, पर्सनालिटी एंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम यूजीसी नेट में देखें। डेवलपमेंटल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी टॉपिक्स हमारे बेसिक बुक से कवर अप करना, इज इट लाइक अब जैसे एग्जाम के लिए एक ही महीने रह गए, सो इफ अब अभी अगर हम कुछ रिविजन करना चाहते हैं, शुड बी फोकस ऑन दोज बेसिक बुक्स, या व्हाट शुड बी डू? लाइक किसी की प्रिपरेशन सिर्फ अगर 2 महीने में अगर हम सम अप करना चाहते हैं, सो तो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ रैपिड रिविजन? ये क्वेश्चन अमित ने भी पूछा है, व्हाट शुड बी डू टू स्कोर मोर एंड फॉर रैपिड रिविजन? रैपिड रिवीजन हम यूजुअली, मैं स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या करती हूँ, बहुत शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। जैसे मैं आपको चाहे दिखा भी दूंगी अभी अपना एक, तो मैं एक पेज पे अराउंड 10 पेजेस को समराइज कर देती हूँ और लास्ट में उसको रीड कर लेती हूँ। और बुक्स में काफी बुक्स मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं, मतलब पीडीएफ की फॉर्म में, तो उनमें मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और उस हाईलाइटेड मटेरियल को पढ़ लेती हूँ। तो आई नो एकदम एक दिन पहले वो सारा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रहती हैं, जो कंसेप्चुअल होती हैं, उन्हें हमें नहीं रिवाइज करना। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता है कि हम हमेशा भूलते हैं, जैसे मैं एरिक्सन की स्टेजेस हमेशा भूलती हूँ, तो वो मैं एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देखती हूँ। तो वो हमें अपना अपना पता होता है कि ये चीज मैं पक्का भूलूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैं पक्का भूलने वाला हूँ, इसको देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है कि हम आइडेंटिफाई करें हम कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, और फिर उसको वापस से एक दिन पहले रिवाइज करें। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी होती है कि सबके लिए एक स्ट्रैटेजी हमें अपने लिए खुद बनानी पड़ती है। तो अगर आपको पता है कि आप इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, तो यू हैव टू रीड दैट स्पेसिफिक टॉपिक एक दिन पहले। ओके ओके। ऑल्सो स्वदर्शिनी ने वापस पूछा है, कैन यू ऑल्सो प्लीज शेयर योर टेक्निक्स टू हैंडल टफ एंड कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज इन यूजीसी नेट? तो कभी मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड यू फाइंड आउट सो मेनी टफ टॉपिक्स, जो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट लगाते हैं, हम पढ़ने के लिए अगर बहुत लोग प्रेफर नहीं करते, लाइक आई ऑल्सो पर्सनली लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट देन आई टेक अप द टॉपिक्स, तो वहां पे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डू? पहले स्वदर्शिनी, उस पेपर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, अगर हमको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, उसको हमको एक रफ पेपर मिलता है यूजीसी नेट के एग्जाम में और एक पेन मिलता है, तो उस क्वेश्चन को आप ब्रेक करके, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके उसे उस पेपर पे लिखो। उससे क्या होता है, एटलीस्ट अगर उसके किसी भी पार्ट का आपने कोई भी कॉन्सेप्ट कभी पहले पढ़ा होगा कहीं भी, या आपके आगे से बस वो निकला होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको हिट हो जाएगा कि हाँ ये मैंने कभी पढ़ा था। हमारी मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको उस पेपर पे लिख के दोबारा ट्राई करो कि हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। और अगर नहीं, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा है, आपने इनफ टाइम उसको दे दिया है, तो जय माता दी, कुछ भी अटेम्प्ट करो, बट कुछ ऑप्शन अटेम्प्ट करो। तो मतलब जय माता दी बोलना है कि सिर्फ सोचना ही है पेपर में? वो स्वदर्शिनी की मर्जी है। I'm just kidding. Okay, okay. निशा, आपका जो क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी में क्या करियर हम चूज करते हैं, विल टेक अप एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूजीसी नेट। तो आप ये टॉपिक जैसे ही ओवर होता है, विल टेक अप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसके भी जो होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, बट आउट ऑफ दिस यूजीसी नेट टॉपिक।
ओके ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास उर्मी का एक क्वेश्चन है, डू वी नीड टू नो द स्केल्स एंड मैनुअल्स, इफ यस फ्रॉम वेयर? स्केल, साइकोमेट्रिक स्केल्स। या वो आई थिंक वो स्केल्स जैसे हमारी टेस्टिंग्स के होते हैं ना, all of those stat and MISIC, WAPIS, all of those tests. I think she's asking about that. हाँ, Scales and manuals कहाँ से ये पढ़ा जाए? What is the source that you can suggest us? इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है, बट हमें कुछ जो बहुत मेजर टेस्ट हैं, जैसे इंटेलिजेंस के टेस्ट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनालिटी के टेस्ट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंस की तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई विल से, और पर्सनालिटी की भी MMPI, उसके बाद TAT, रॉशार्क, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। बट आपको इतना नहीं है कि आपको एक एक टेस्ट की मैनुअल पढ़नी है। आप जितना भी बेसिक बुक्स में अवेलेबल होता है, या कभी आपने UG या PG में पढ़ा है, या इंटरनेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, उतना जानना ही सफिशिएंट। जैसे मैं रॉशार्क का एग्जांपल दे देती हूँ कि कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कौन से कलर्ड होते हैं, कुछ कार्ड्स की कौन सा फादर कार्ड होता है, कौन सा मदर कार्ड होता है। उसके बाद आई थिंक दैट इज इनफ। उसकी इंटरप्रिटेशन पे मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, इवन दो हमने क्राइस्ट में बहुत डिटेल में उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी, बट उस पर मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा है नेट और गेट में। तो इस तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इंटेलिजेंस में आ जाएंगे कि किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, पहले क्या आया था, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि अरेंज करो पहले कौन आया था। UGC नेट में आजकल मैचिंग और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस को किसी से मैच करना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट एट अ टाइम चेक कर रहे होते हैं, और वो इजी भी होता है क्योंकि आपको एक या दो भी सही पता है तो आपका पूरा आंसर सही हो सकता है। ओके ओके, ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है टू कीप इट इन माइंड जब कोई प्रिपेयर कर रहा है UGC नेट के लिए। एंड ज्योति, आपका भी जो क्वेश्चन है, इट इज नॉट रिलेवेंट टू आवर टॉपिक राइट नाउ, तो हम आपका जो क्वेश्चन है हमारे सेशन के एंड में लेंगे। सो व्हाट शुड वी डू आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी, विल डिस्कस अबाउट दैट वंस वी फिनिश ऑफ दिस वन। ठीक है, संदीप का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स को किस तरीके से करें, लाइक फॉर पेपर 1? तो मैथमेटिक्स के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो ज्यादा से ज्यादा। यूजुअली वो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और 5 क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर यूजुअली। तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अमित, उसके लिए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और पैटर्न मोस्टली सेम रहता है। तो आपको पहले उस कॉम्प्रिहेंशन को समझना होता है, उन्होंने क्या दिया है, उन चीजों को साथ साथ लिख लेना होता है। जैसे अगर टेबल उन्होंने दी हुई है तो सुपर बेस्ट, अगर टेबल नहीं दी है तो आप उन चीजों को नोट कर सकते हो अपने पेपर पे, और उसके बाद क्वेश्चन पे जाना चाहिए। या फिर आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, पहले 5 क्वेश्चंस, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको एक बार क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछी है, रेशो पूछा है, क्या पूछा है। उसके बाद आप पैराग्राफ में पढ़ सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। तो एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये हमेशा चलता है। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और YouTube इज द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल, ट्रस्ट मी। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अगर हमें देखा जाए तो आजकल YouTube इतना अच्छा सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म हो गया है, लाइक फॉर एग्जाम्स एज वेल, अ पर्सन कैन रिलाई ऑन YouTube, और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर हो जाते हैं। अमोला, आई हैव अ वेरी पर्सनल डाउट। जैसे आपने बोला कि देयर आर सम थिंग्स वी कैन सर्च फ्रॉम इंटरनेट व्हाइल वी स्टडिंग, सो ये जो इंटरनेट की जो वेबसाइट्स होती हैं, आर दे ऑथेंटिक इनफ ताकि हम अपनी तैयारी में इसको शामिल कर सकें? ये हमको ध्यान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुकन्या। हमें किसी भी वेबसाइट से उठा के नहीं पढ़ लेना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जो कि इनफ क्रेडिबल होती हैं कि हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसका काफी अच्छा तरीका है, आप रिसोर्सेज चेक कर सकते हो कि उन्होंने आर्टिकल के लास्ट में रिसोर्सेज दिए हैं या नहीं। और जैसे एक वेरी वेल माइंड करके वेबसाइट है, उनके काफी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। एक स्मार्ट साइकोलॉजी करके है, उसके आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं। तो जब हम बार बार पढ़ते रहते हैं तो हमें ट्रस्ट हो जाता है, समझ आ जाता है कि इस वेबसाइट पे अच्छा मिलता है कंटेंट, और हम इसको रिलाय कर सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पे
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट हमें डिसाइड करना है कि हमें किसे ट्रस्ट करना है या कौन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं पेपर 1 के लिए तलवीर सिंह को फॉलो करती थी और उनका मुझे काफी अच्छा लगता था अन अकेडमी पे। ओके ओके। हाँ, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है, दिस विल बी माय 10th अटेम्प्ट एंड दिस टाइम आई वांट टू क्रैक इट, प्लीज गाइड। सो अगर सुकन्या, किसी की, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, हम क्वेश्चंस लास्ट में ले, एक बार फटाफट अपना हाँ क्वेश्चंस हाँ कवर कर लेते हैं। बिल्कुल, दैट इज व्हाट मैं तो आई एम टोटली रेडी, सो विल डू दैट। हम आप सबके क्वेश्चंस हम एक एक अपने सेशन के एंड में लेंगे, सो आप अपने सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दीजिए। आई विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस। ओके, या सो लेट्स मैं डिस्कस सारे जो दो क्वेश्चंस तीन। आंसर करके जाऊंगी, ऐसे हाँ, नहीं अभी तो काफी जाऊंगी। सारी बातचीत अपनी होगी, सो विल टेक अप। बट अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम अगर कोई भी एक बच्चा यूजीसी नेट के लिए तैयारी शुरू कर रहा है, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम, कितना हमें ये मान के लिए, मतलब मान के चलना चाहिए कि दिस मच टाइम इज इनफ फॉर द प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ? अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो आई थिंक इवन 4 मंथ्स इज अ गुड इनफ टाइम। बट ओके 4 मंथ्स में आपको कंसिस्टेंटली भी एटलीस्ट 6-7 आवर्स इतना पढ़ना पड़ेगा। बट ओके अगर आप 6 मंथ्स पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो बिना कुछ छोड़े। और मे बी 6 मंथ्स अगर आप डेली 4 आवर्स भी दे रहे हो तो इट इज वेरी सफिशिएंट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना सारा सिलेबस नहीं है, हम बहुत आराम से 6 मंथ में कवर कर सकते हैं। तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। लाइक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। ओके। सो अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो somebody has asked, ये कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मैंने कुछ पोल जो किया था कुछ दिन पहले, आई एम टेकिंग अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है। सो किसी ने पूछा कि अगर व्हाट इफ वी क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जाम, व्हाट हैपेंस, लाइक उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज द स्कोप। हम जैसे हम कह रहे हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, बट इन रियलिटी ये सारी चीजें कैसे, लाइक कैन यू गिव अस अ लेआउट कि ये कैसे चीजें होती है, कब पेपर का रिजल्ट आता है और फिर कब सिलेक्शन आता है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं सारी जगह। सो कैन यू प्लीज ब्रीफ दैट आउट एवरीथिंग। पेपर का रिजल्ट काफी टाइमली आ जाता है आजकल। आई थिंक 2-3 मंथ्स में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आपको नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स शॉर्टलिस्ट कर लेने चाहिए कि मुझे इन इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकलती रहती है और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमको अप्लाई करना होता है। तो हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते जब वैकेंसी निकल रही है तभी। तो जब हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अब हम उन यूनिवर्सिटीज से अपडेटेड रहेंगे कि कब इनमें वैकेंसीज निकल रही हैं, और जैसे ही निकलेंगी हम अप्लाई कर देंगे। और शॉर्टलिस्ट करते टाइम हम उनकी एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे। काफी सारी यूनिवर्सिटीज अलोंग विद यूजीसी नेट पीएचडी भी मांगती हैं, क्योंकि बीच में ये नेसेसरी हो गया था कि आपको यूजीसी नेट और पीएचडी दोनों होना चाहिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आजकल पीएचडी भी मांगती हैं, और एटलीस्ट यू आर परसुइंग योर पीएचडी वो मांगती हैं। तो हमें शॉर्टलिस्ट करते टाइम उनकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट इसके लिए। तो शॉर्टलिस्ट करके फिर जब भी वैकेंसी निकल रही है हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये अप्लाई करते वक्त डू वी गेट एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, जब हमने अगर क्वालिफाई किया है तो किस बेसिस पे हम अगर मान लीजिए यूजीसी नेट क्लियर हो गया तो डू वी गेट एनी ई सर्टिफिकेट जो हम दिखा सकते हैं व्हाइल अप्लाइंग, और व्हाट लाइक हमारे पास क्या क्रेडिबिलिटी होती है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद? यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। तो वही ऑफिशियल काम करता है कहीं भी दिखाने के लिए कि हम नेट क्वालिफाइड हैं। तो दैट स्कोर कार्ड एक्ट्स एज द सर्टिफिकेट ओनली। ओके, दैट इज वंडरफुल वंडरफुल। सो तो वैसे ये जो टाइमलाइन होता है, मान लीजिए अभी जो एग्जाम है उसका डेट अगर 13 to 23 है,
सो व्हाट डू यू थिंक, जैसे पिछली बारी ऐसा हुआ था कि जो हमारे एग्जाम्स की डेट्स थे इट वाज एक्सटेंडेड टिल मार्च 15। राइट। तो राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, इस बार भी क्या वो एक्सटेंड होने वाला है, या स्टिल इट इज लाइक टू मच, लाइक हो सकता है कि बस 10 दिन में ही सारा कुछ ये लोग कर दे? सो इस इज बार इट लाइक सुकन्या, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग? उनके एडवर्टीजमेंट में तो यही लिखा है कि 13 to 22 वो सारे एग्जाम्स खत्म कर देंगे, बट हाँ, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनटीए, अभी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि कब खत्म होगा, कब रिजल्ट आएगा। इवन अभी ये बहुत शॉकिंग था कि जस्ट इसी मंथ नोटिफिकेशन आया और अगले मंथ एग्जाम है। दैट्स ट्रू, यस। हाँ, तो काफी बच्चे ऐसे भी सोचे थे हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन इफ आई हैव लाइक, मैंने थोड़े से रिसर्च किए प्रीवियस ईयर पे, तो पिछले 2-3 साल में जब कोविड भी था या उससे पहले भी अगर देखा जाए, तो दे यूज टू डू लाइक दैट। दे यूज टू टेक दिस 1 वीक एंड 10 days ओनली, और वो सारे पेपर कर देते थे, एंड द नोटिफिकेशन जस्ट गॉट रिलीज बिफोर 1 month एंड 1.5 months, उसके अंदर ही वो पेपर कर देते थे। सो दैट इज व्हाट आई एम होपिंग कि अगर पोस्टपोन हो जाता है थोड़ा सा, तो बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट इज अभी अ वेरी कोविड गुड की थिंग। वजह से काफी उनकी साइकिल हिल गई थी, बट अभी रेगुलराइज कर रहे हैं वो धीरे धीरे, तो आई थिंक इस बार से हो जाएगा। ओके, ओके, सो दैट इज नाइस। ओके, तो आप सबको अगर ये चीज आप ध्यान रखें, हमारे पास काफी कम टाइम है, तो बच्चों प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो अब। जो भी थोड़ा बहुत सोच रहे कि हाँ एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं होगा। यू अब हैव टू नहीं। फोकस फ्रॉम नाउ ऑन। Okay, okay. Let's take up our next question. How to get the job of assistant professor? अब जो आपने कहा ये जो पीएचडी है, पीएचडी का जो डिग्री मांगते हैं इन एलिजिबिलिटी, इन अ रीसेंट न्यूज वी हैव सीन दैट कि पीएचडी जो है उन्होंने निकाल दिया फ्रॉम देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कितने हद तक इन द रियलिटी, हाउ मच इट इज ट्रू इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बोथ? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज काफी हद तक फॉलो कर रही हैं इस चीज को। ओके, जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा था, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में उन्होंने पीएचडी नहीं मांगी थी, बट ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मोस्टली मांग रही हैं पीएचडी। दे आस्क ओके। फॉर पीएचडी। ओके, सो वंस अ पर्सन क्वालिफाई द यूजीसी नेट, अगर मान लीजिए वो कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई और ऐसे इंटरव्यू या डिस्कशन, कुछ ऐसा राउंड उनके लिए होता है? लाइक व्हाट हैपेंस, डू दे हैव टू लाइक अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू एंड प्रिपेयर फॉर इट? हर कॉलेज का अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी का। कुछ रिटन एग्जाम भी लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो यूजीसी ओके, नेट क्वालिफाई करके हमारी एग्जाम लाइफ खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद और एग्जाम्स देने हैं हमें। तो एक बार हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है। मुझे तो अब समझ आ गए, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, नहीं बेटा बस 12th तक पढ़ लो, मेहनत उतनी करनी है। दिस डज नॉट हैपन, लाइक हमारा कभी खत्म ही नहीं होता एग्जाम देना। सच सो में। आई थिंक दिस इज जस्ट एन इल्यूजन कि हमें बस ठीक है कुछ भी करो तो उसके लिए पेपर है। हम्म। बट Yeah. ये कि यूजीसी नेट हमको वो अ, रास्ता दे देता है कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं उन एग्जाम्स के लिए। तो Yes. वो अपने आप में एक अच्छी चीज है कि वी कैन सिट फॉर दोज एग्जाम एटलीस्ट। Yeah. या और मेरे को लगता है एग्जाम्स आर अ बेस्ट वे टू एक्चुअली असेस योरसेल्फ, कि हमने जो भी पढ़ा इतने साल, बैचलर्स करा है, मास्टर्स करा है, व्हाट इज आवर रिटेंशन, हमने जो पढ़ा राइट। हमारा रिटेन कितना हुआ, दैट बिल्कुल। इज मोर इम्पोर्टेंट, है डेफिनेटली। ना? तो वो सिर्फ पेपर देते वक्त ही समझ आता है, क्योंकि a lot of us we don't sit and solve questions for a longer time। तो राइट। क्या होता है, वो जो पेपर के प्रेशर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके चक्कर में चलो वी कैन असेस कि हाँ ठीक है, दिस इज माय वीक स्पॉट, दिस इज माय स्ट्रेंथ। तो वो सिर्फ पेपर के लिए ही हो पाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो मे बी वी विल नॉट इवन स्टडी। जैसे मैं बहुत या टाइम से अभी पढ़ाई नहीं की हूँ। Okay, okay. So my last question for the day is from my side. It's the last question. उसके बाद हम सबके questions लेने वाले। So बिल्कुल। if I ask like किसी ने अगर JRF भी clear किया है, तो JRF एक तो आपने बताया कि PhD के लिए बहुत helpful हो जाता है JRF के लिए। So I wanted to ask, is there any like JRF clear करके क्या जो बच्चे MPhil के लिए prepare कर रहे हैं, like a lot of people are preparing for MPhil, जो यूजीसी नेट भी क्लियर कर चुके हैं या फिर वो देने वाले हैं, सो उनके लिए क्या बेनिफिट्स है अगर बिल्कुल। कोई एमफिल कर रहा है? हम्म।
इसमें क्या होता है, जेआरएफ वाले बच्चों के लिए एमफिल के सारे एग्जाम्स में कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता है। एमफिल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतना ज्यादा नहीं होता है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट्स हैं तो 10 में से 1 और 2 जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो वहां हमको एडेड बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपके पास जेआरएफ है और आप एमफिल करना चाहते हो तो आप उन रिजर्व सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। आपको पूरी साइकोलॉजी मास्टर्स से compete नहीं करना है, आपको केवल जेआरएफ क्वालिफाइड साइकोलॉजी मास्टर से compete करना है। तो आप बहुत, आपको वो बहुत चांसेस बढ़ा देता है एमफिल क्वालिफाई करने के। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि वैसे भी एमफिल में इतना कंपटीशन है, इतने बच्चे एग्जाम्स देते हैं और सीट्स उतना ही कम है। लाइक इफ आई सी सारे कॉलेजेस में मोर ओवर दिस 10 to 15 सीट्स आर देयर, उससे भी कम होते हैं कुछ कॉलेजेस में तो। एंड इफ वी सी कैटेगरी वाइज जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो जनरल के लिए भी मतलब काफी कम सीट्स हो जाते हैं। द रेशियो इज वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड, बच्चे देने वाले इतने ज्यादा हैं पेपर और सिलेक्ट होने वाले काफी कम होते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस कैटेगरी, अगर कोई यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करता है, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देम। ओके ओके अमोला, लेट्स तो कन्या कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करके निकाल लेना चाहिए। तो अगर हमें सीधा एमफिल नहीं मिल रहा है तो हम टेढ़े रास्ते से भी जा सकते हैं। तो करेक्ट, आजकल थोड़ा सा तो ये ऐसे टैक्टिस बिल्कुल ही सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आई डोंट थिंक विल मैनेज टू लाइक वो जो बाउंड्री जो क्रॉस करने की सभी कोशिश कर रहे हैं, वो उसको क्रॉस करने के लिए भी आजकल स्ट्रेटेजीज लगती है। राइट, ओके ओके, लेट्स टेक अप अभी जो भी क्वेश्चंस थे हमारे। सो पहले तो मैं वही वापस उसी क्वेश्चन में आना चाहती हूँ कि जिन्होंने कहा था मैंने 10 आई हैव अटेम्प्टेड 10 टाइम्स, सो व्हाट शुड वी डू। तो अभी भी अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो उनके लिए एक क्विक अगर आप रिविजन स्ट्रेटेजी उनको बताएं जो वो पेपर से पहले कर सकते हैं, लाइक व्हाट दे कैन फोकस ऑन। अगर आप 10 बार दे चुके हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी मिस कर रहे हो। मतलब आप 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 1 महीना में भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। उससे क्या होता है, हमारा फ्लो टूट जाता है बिल्कुल पढ़ाई का। एक पढ़ने के लिए एक जोन चाहिए होती है, अलग मोटिवेशन चाहिए होती है। और अगर हमने बीच में इतना बड़ा स्पेस ले लिया है तो दोबारा स्टार्ट करना इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। और उतने टाइम में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल गए होते हैं। तो कंसिस्टेंसी, अगर इवन आप 1 घंटा पढ़ो बट डेली पढ़ो, तो दैट इज अ जनरल एडवाइस। बट अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके ओके, अमित जी का एक क्वेश्चन है, माय यूनिट 1 and 8 इमर्जिंग एरियाज इन सोशल साइकोलॉजी अ वीक एरिया, हाउ टू डील विद इट। अगर ये दो टॉपिक है तो क्या करना चाहिए। उससे काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी यूजीसी नेट में आ जाते हैं उससे क्वेश्चंस, बट यूजुअली उससे काफी कम आते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नेट के अपने कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं हर यूनिट के लिए। तो उस यूनिट के लिए आप वो फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगी। केवल उतना पढ़ना, आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट स्पेसिफिक यूनिट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ज्योति, ज्योति का क्वेश्चन आया है, आफ्टर फॉर्म्स फॉर यूजीसी आर रिलीज इन व्हाट टाइम पीरियड द पेपर विल बी हेल्ड। तो या ज्योति, जब भी हमारे फॉर्म आते हैं उससे 1 मंथ या वो डेट आपके जो मेंशन्ड होते हैं मोस्टली उसी डेट पे स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली एडवर्टाइजमेंट के साथ ये सारी डेट्स आ जाती हैं, अप्रोक्सीमेट डेट्स आ जाती हैं, तो वो फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So let's take up another question. She's telling all this seems very difficult process. No ज्योति, कुछ ऐसा स्केरी बस सुनने के लिए लग रहा है। वो जब भी आप एक फ्लो में आ जाते हो ना, everything will be easy. Right. And as a student we all have to very very adamant कि हमें ये करना ही है। स्केरी तो क्या नहीं है, स्केरी सब कुछ है। बट आपने अगर ठान लिया है कि ये करना है, जैसे अमोला ने बिल्कुल ही ठान लिया था कि मुझे करना ही है, सो दिस विल be easy for you after some time. मैंने खुद 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। मैंने पहले 2 अटेम्प्ट और दिए हैं जिनमें मैं नहीं सक्सीड कर पाई थी, और 2nd अटेम्प्ट में 2-3 नंबर से मिस आउट किया था, जो काफी डीमोटिवेटिंग होता है कि इतना क्लोज आके भी नहीं हुआ। और फिर हम हताश हो जाते हैं कि अब हम देंगे ही नहीं, अब हमें पेपर देना ही नहीं है, क्वालिफाई ही नहीं होते हैं।
बट वही है, हमें जैसे सुकन्या बोल रही है कि एडमेंट रहना है, हमने करना है तो करना है, ये अपने अंदर एक जज्बा रखना है, और इसके लिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हो, हम आपको मोटिवेशन भेजते रहेंगे। वो एनी टाइम इफ एनी स्टूडेंट कम्स अप, मेरा तो सबसे पहले यही रहता है कि बच्चा आपको करना क्या है, जो भी करना है, पुट अप योर गोल्स वेरी वेरी क्लियर। जितना क्रिस्टल क्लियर आपका गोल होगा उतने जल्दी आप भाग के वहां पहुंच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है संजय चौहान का। मैम, कोचिंग क्लासेस फॉर नेट एग्जाम। वैसे संजय, अमोला ने अभी बोला है थोड़े टाइम पहले कि वैसे एज सच आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद भी पढ़ के क्लियर कर सकते हैं पेपर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फोकस। काफी सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, कुछ बेसिक बुक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। एंड अगर उससे ज्यादा आपको डिटेल में कुछ चाहिए तो आप अमोला से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ही हेल्प कर देंगी किसी भी टॉपिक में आपको अगर चाहिए होगा। ओके, सो नाउ टेक अप एक दो क्वेश्चंस थे जो यूजीसी से कनेक्टेड नहीं थे, सो ठीक लेट्स है। एड्रेस दैट एज वेल। सो एक एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आफ्टर मास्टर्स। हाँ, मास्टर्स के बाद मतलब मास्टर्स हमको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद हमें अपनी स्किल्स बिल्ड करनी होती हैं, अपना नीश या आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें किस जगह ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो हम इंटर्नशिप्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मुझे समझ आया कि मुझे ट्रॉमा में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं अभी उसका सर्टिफिकेट कोर्स परसू कर रही हूँ। तो मास्टर्स के बाद आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हो कि मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको सपोज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पसंद है, उधर करियर बनाने का मन है, तो वो आइडेंटिफाई करके आप उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, और उसके बाद एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉम्पिटेंट हों, क्योंकि हम किसी की डायरेक्टली लाइफ के साथ नहीं खेल रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी की लाइफ का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उतने कॉम्पिटेंट हों कि हम किसी का नुकसान ना करें। इट इज द राइट। बेसिक रूल ऑफ थेरेपी कि हमें क्लाइंट की बेनिफिशियंस के बारे में सोचना होता है हमेशा। तो आप जब वो कॉन्फिडेंस फील करो, वो कॉम्पिटेंस फील करो, तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हो। आप नेट और गेट क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए या फिर लेक्चरशिप के लिए जा सकते हो, या आप एमफिल का एग्जाम क्रॉस करके एमफिल परस्यू कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट योर फ्यूचर टू बी। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये सारी चीजें एक प्रोसेस का ही पार्ट है, दैट इज व्हाट आई आल्सो थिंक सो। सो धीरे राइट। धीरे सारी चीजें एक एक, इट्स लाइक स्टेप्स ओनली, आप एक एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट। सिट एंड लाइक ठीक है कि फिफ्थ स्टेप में जो है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। सो वी ऑल हैव चेंजेस इन आवर प्लान्स इवेंचुअली। तो या दैट इज गुड, अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, मास्टर्स के बाद जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम, मास्टर्स के बाद आप जॉब एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पूछ रहे हैं या थेरेपिस्ट पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई। आई मास्टर्स थिंक के शी बाद इज अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ओनली। हाँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह भी वर्क कर सकते हैं, और बहुत सारी रिसर्च असिस्टेंट पोजीशंस निकलती हैं, तो वो भी ओके। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर किसी को पीएचडी करनी है, उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो वो हम कवर कर सकते हैं, उसमें जॉब कर सकते हैं। Okay. Yes, Urmi, we have already addressed this question. जो वैलिडिटी होती है आपकी नेट की, इट इज लाइफ टाइम, इट इज फॉर लाइफ टाइम। लेकिन जो जेआरएफ की वैलिडिटी होती है, इट इज ओनली फॉर 3 years। तो विद इन राइट। 3 years अगर आपने पीएचडी नहीं ज्वाइन किया, या इफ यू वांट टू रिन्यू योर जेआरएफ क्वालिफिकेशन, अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, और उसके बाद ही आप दोबारा जेआरएफ के थ्रू कोई किसी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट। So yeah, I think all of our questions has been answered. Yes. So yeah, Amola, agar if we want to sum up this whole session, I think we covered a lot about UGC net. लॉट। और है ना, तो जब काफी। हम तैयारी कर रहे होते थे, तो आई यूज टू मिस कि कोई बता दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे क्या है ये सारे एग्जाम्स, सारे क्वालिफाई करने हैं क्या, क्या करना है। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनीवन हु हैज ज्वाइंड। या आई एम ऑल्सो होपिंग दैट हम आगे भी ऐसे सेशंस करते रहेंगे।
अमोला के साथ भी काफी सारे सेशंस करने हैं हमने, अभी बहुत कुछ सीखना है उनसे, उनकी जर्नी से। तो अगर मतलब यू गाइज आर फ्रॉम लाइक, मेरे को जितना आज के सेशन से ये पता लग रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स थेरेपी, बीइंग अ थेरेपिस्ट, डूइंग एमफिल। तो ऐसे और भी सेशंस हमारे आते रहेंगे, डू विजिट अस। Okay, and some more questions are coming up. What is the procedure to become a counselor? काउंसलर आप मास्टर्स करके एलिजिबल होते हैं काउंसलर की तरह प्रैक्टिस करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस करने के लिए। बट आप अपनी नीश आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे करियर काउंसलिंग में ज्यादा मजा आता है, फैमिली काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग या स्कूल काउंसलिंग। उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना आइडेंटिफाई करके। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन, हाँ या विच डिप्लोमा कोर्स बेनिफिशियल आफ्टर मास्टर्स? ओके, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, यस, डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। तो अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट बताओगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। और मान लीजिए हमारे पास काउंसलिंग, अगर हम काउंसलिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं, सो व्हाट आर दोस डिप्लोमा कोर्सेज फॉर काउंसलिंग फील्ड? डिप्लोमास आप कोई भी करिए, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्रेडिबल जगहों से कीजिए। जैसे बहुत सारे आजकल फेक कोचिंग, फेक चीजें चल रही हैं जो कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स चला रही हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी फैसिलिटेटर है उसके बारे में पढ़ लें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ लें। कोई भी डिप्लोमा करने से पहले, ये मेरी जनरल एडवाइस है। बाकी स्पेसिफिक डिप्लोमास आपको गूगल पे आराम से मिल सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में होते हैं, काउंसलिंग में होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हो। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्रेडिबल रिसोर्स से करो। दैट मीन्स हमारे जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन को माना जाता है इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, तो डिप्लोमा उसी जगह से करना बेहतर है जो आरसीआई अप्रूव्ड हो। बोल सकते हैं। बट आरसीआई अप्रूव्ड भी सारे डिप्लोमास नहीं होते हैं। जैसे टेस्ट ट्रॉमा भी कराता है बट वो आरसीआई अप्रूव नहीं है, बट टेस्ट एक क्रेडिबल सोर्स है अपने आप में। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सुकन्या। आई थिंक पीपल आर लविंग दिस सेशन, लाइक इतने सारे क्वेश्चंस हैं and a lot of people are saying thank you. Is IGNOU diploma program is good? IGNOU का डिप्लोमा प्रोग्राम कैसा है अमोला, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है तो? इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किया है। बट सुकन्या आपको कोई आइडिया होगा? या मेरे पास काफी स्टूडेंट्स इग्नू के हैं। सो व्हाट आई हैव सीन, जो इग्नू के सिलेबस होता है, जो नोट्स होते हैं, दैट इज वंडरफुल। लाइक अगर उसको ध्यान से पढ़े, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बस वास्ट होता है, उसको थोड़ा सा हमें कट शॉर्ट करके पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड द डिप्लोमा कोर्स, मैं भी इतना आई एम नॉट श्योर, आई आस्क टू स्टूडेंट्स अंडर मी कि उनका डिप्लोमा का कैसा सीन है, एंड आई लेट यू गाइज नो। जिनको भी डिप्लोमा इग्नू से इंटरेस्ट है, आई लेट यू गाइज नो इन द डीएम। आप मुझे डीएम करते रहा करिए जब भी आपको ऐसे कोई डाउट्स आते हैं तो। ओके, सो वी आर टेकिंग अप 1-2 लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, then we'll sum up this session. Ma'am, do you take any classes for UG, PG psychology students? Yeah. Sudarshini, हाँ, पर्सनली रीच आउट कर सकते हो। अगर 2-3 बच्चे हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अपनी लैंग्वेज, अपनी नॉलेज शेयर करने से बहुत फायदा ही होता है, अच्छा होता है। तो अगर 2 to 5 स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे एज अ ग्रुप अप्रोच कर सकते हो और मैं बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ। माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर बायोसाइकोलॉजी एंड रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोमेट्री। या ऑल्सो विद साइकोड्रामा ऑल्सो हमारी भी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस की कोई कमी नहीं है। आप जिससे भी पढ़ना चाहें बिल्कुल रीच आउट करिए। वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजी एंड पीजी साइकोलॉजी। लाइक हमारे पास काफी सारे, अमोला ने भी काफी क्लासेस प्रोवाइड करी है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक यस, दैट इज इट। Let's sum up this, easy notes of, yes, the notes are very very easy. Okay, where are you both from? है जो आई थिंक सुकन्या बहुत इम्पोर्टेंट है कि काउंसलर और एमफिल में क्या डिफरेंस होता है। तो काउंसलर मास्टर्स करके एज अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एमफिल करने के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आरसीआई लाइसेंस मिल जाता है, आप डायग्नोस कर सकते हो। एज अ काउंसलर आप डायग्नोसिस नहीं दे सकते,
किसी भी डिसऑर्डर पे वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आफ्टर एमफिल करने के बाद ही वो कुछ भी कर सकते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, इसलिए आई थॉट इसे एक बार लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं कि It is really true कि जो काउंसलर और क्लिनिकल थेरेपिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, टू नो दिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप साइकोलॉजी के फील्ड में मास्टर्स तक पहुंच जाते हो, देन यू आर लाइक ठीक है, आगे बढ़ना है तभी कुछ हो पाएगा, या अभी हम कैन लाइक आर वी लाइक कैन वी स्टार्ट वर्किंग, कैन वी स्टार्ट गिविंग काउंसलिंग। सो दैट इज वेरी नाइस। जितने भी क्वेश्चन हैं आप मेरे को डीएम कर सकते हो और मैं पक्का से आंसर कर दूंगी। आई प्रॉमिस कि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। ओके ओके, सो या अमोला, थैंक यू सो मच आपके इतना ज्यादा कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes if I say. You have shared us a lot of insights about UGC NET, and I am like personally I am very delighted talking to you professionally and knowing all of those things from you. You are a great mentor. तो हम आगे भी ऐसे सेशंस करते रहेंगे। It's my honor to be invited by you and Psychodrama. I'm very grateful for this and everyone who joined and asked so many questions. It's lovely to see the enthusiasm. हमें बहुत एंजाइटी हो रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम क्या लोग ज्वाइन करेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, बट इट्स वेरी नाइस कि इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इतनी सारी क्यूरियोसिटीज सॉल्व की, और जितनी भी अभी बच गई हैं यू कैन आस्क, यू कैन डीएम एनी ऑफ अस। हम दोनों के आपको पेजेस पता है, मेरा है कोहिल बाय अमोला, बीच में कोहिल _by_ अमोला, और सुकन्या का है psychodrama.official। आप हम दोनों को रीच आउट कर सकते हो किसी भी डाउट के लिए कभी भी। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। I'm so sorry guys, थोड़ा सा काफी ज्यादा कोल्ड भी हो गया है। So, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मेरे वॉइस से ही उनको पता लग गया होगा। सो बट दिस सेशन वाज अमेजिंग। आप सबको जो भी आपको डाउट्स हैं आप हमें पर्सनली रीच करिए, हम ऐसे ही सेशंस के साथ और आते रहेंगे, विल एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड या वी विल मेक दिस एज अ मंथली थिंग। या मोला, वी हैव टू डू इट। हमारे पास इतने सारे सेशंस हैं, वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। डन, फॉर श्योर, डन। Send us the topics and we will meet you monthly. Yeah, okay. Thank you so much guys. Thank you. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। Let's have different live sessions forthcoming, okay? And as of now, अमोला को थोड़ा फ्री कर देते हैं। She has been like in a busy schedule, उसने टाइम निकाल के हमारे साथ इतनी बातें करी है, तो I think she has to go now, okay? हमारी बातें तो चलती रहती है। लास्ट अनाउंसमेंट बिफोर गोइंग, कल और परसों मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ ऑन केस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है उसे ज्वाइन करने में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपने पेज पे पोस्टर डाला है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। एज अ लाइक मैं आपको वापस बता दूं, अमोला इज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ, तो उनका जो भी वर्कशॉप एंड वेबिनार्स होता है दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर द थेरेपीज एंड बीइंग अ थेरेपिस्ट। राइट, तो आप उनके वर्कशॉप्स बिल्कुल ज्वाइन करें। और आई थिंक आप आपके पोस्टर्स आप मुझे एक बार ही शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने जितने भी है स्टूडेंट्स उनके सबके साथ आई विल शेयर इट इन माय पेज ऑल्सो शेयर, ताकि सबको एक आइडिया मिल जाए। कल का टाइम भी आप अगर थोड़ा मेंशन कर देंगे दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस। टाइम 6 to 8 है दोनों डेज, और बहुत सारा फन करेंगे, रोल प्लेज होंगे, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेज होंगी, थ्योरी नहीं होगा, तो इट विल बी सुपर अमेजिंग if anybody wants to join. Okay. So do you have any form where registration we can do register? Yeah, there is form available. I will put it in my story after this session ends. They can check it out from there. Okay. Please share that. I'll add that to my story as well. For sure. So I hope people will join you in a lot number, क्योंकि काफी लोग थेरेपी एंड थेरेपिस्ट में मतलब थेरेपिस्ट बनने में इंटरेस्टेड है। So you'll get a lot of people. So all the best to you, Amola. And thank you so much for sharing your time. Okay, hope to see you soon. And we are going to discuss a lot of topics in the next sessions. Okay, till then, all of you, good night, all of you. Bye to you as well. चलिए, अब हम next session में फिर से मुलाकात करेंगे. Bye. Okay. Bye. Thank you so much. Bye.